औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Class Pre-9 subject Physics, Unit number 1. Today is our topic about our prefixes. Prefixes. First of all, I will tell you about the some common examples. Some of the quantities are either very large or very small. For example, we have a 250,000 meter and 0.002 watt and 0.00002 gram, so on. These are the some large values and some are very small. So SI units have a advantage that their multiples and their sub multiples can be expressed in the terms of a prefixes. So SI यूनिट्स के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम जो नंबर्स दिए होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो छोटे होते हैं, उनके आगे या पीछे हम क्या करते हैं, एक वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनको हम प्रीफिक्सेस का नाम देते हैं और वो उन वर्ड्स के मल्टीपल्स या उनके सब मल्टीपल्स होते हैं। तो बड़ी अमाउंट को छोटा करके लिखा जा सकता है और छोटी अमाउंट को भी एक्यूरेट करके लिखा जा सकता है। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, प्रीफिक्सेस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि प्रीफिक्सेस होता क्या है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर लेटर्स एडेड बिफोर द SI यूनिट्स such as there are some examples like a kilo, mega, giga and milli. These are the prefixes. Here is the proper definition. The words are letters added before a unit and stand for the multiples or the sub-multiples of that unit are known as a prefixes. And these are the prefixes words kilo, mega, milli, micro and so on. Let's suppose for example we have a example like this. One object mass have a 20,000. This is a very large value and we know that the 1000 is equal to 1k, so it can be written in the form of like this, 10 की power 3 gram, and we know very well that 10 की power 3 that is equal to 1000, and it can be written in the form of this, in the replace of this, that is equal to 1k. And this is the words that are added before the SI unit. Unit of weight is gram, kilogram. That's why it is the kilo is the prefix. So similarly, there are another example. We can see that one object have a speed like this, 1000 meter per second, and it can be written in the form of 1000. So it can be written in the form of like this, and that is equal to k, 1k kilometer per second. These are the prefixes. So here are a one specific table for the prefixes, and these are very common we are using here. हेक्सा मीन इसको पढ़ने का एक आसान और याद करने का एक आसान तरीका है कि हम यहाँ से शुरू करते हैं इसको। डिका, इसको डी बोल, वो 10 की पावर 1 होते हैं। इसके अबव जाएंगे तो ये पावर बढ़ती जाएगी और इसी से बिलो आते जाएंगे तो नेगेटिव में पावर इनकी डिक्रीज़ होती जाएगी। सो डेका 10 की पावर 1, हेक्टो 10 की पावर 2, किलो के लिए और 10 की पावर 3, मेगा एम के साथ डिनोट 10 की पावर 6, गीगा जी के साथ डिनोटेड और 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12, पीटा 10 की पावर 15, एक्सा 10 की पावर 18, एंड बिलो डेका डेसी डी की पावर 10 की पावर 1, सेंटी 10 की पावर 2, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, पिको 10 की पावर -12, फेमटो 10 की पावर -15, आर्टो 10 की पावर -18. Similarly, multiples and sub-multiples of the length. These are the sub-multiples. 1 kilometer is equal to 10 की पावर 3 meter. 1 centimeter is equal to 10 की पावर -2 meter. 1 millimeter is equal to 10 की पावर -3 meter. 1 micrometer is equal to 10 की पावर -6 meter. 1 nanometer is equal to 10 की पावर -9 meter. These are the multiples and sub-multiples and the prefixes, some common. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन टॉपिक। सो जैसे हमने प्रीफिक्सेस पढ़ा है, सिमिलरली एक और हमारे पास मेथड है कि जिसके ज़रिए हम बड़े नंबर्स को आसानी के साथ उनके यूनिट के साथ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
तो इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ए सिंपल बट a scientific way to write a large or a small numbers is to express them in some power of 10। सो हम इसको 10 की पावर में लिखेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, उन लार्ज नंबर्स को स्मॉल करके इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और लिख सकते हैं, और हम अपना वक्त कीमती जो है उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। सिंपल डेफिनेशन है उसकी, द साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed as a sum power of 10 multiplied by a number between 1 to 10। This is the definition. Now I will tell you about the some common examples. So here is the definition. Scientific notation: a number is expressed as a sum power of 10 multiplied by a number between 1 to 10। So now the common example, let's suppose the moon is, जो हमारे पास चाँद है उसका ज़मीन से जो फासला है वो ये है 384,000,000। क्लियर, इतने मीटर्स वो हमसे क्या है अवे, यानी कि ज़मीन से चाँद इतनी दूर है। अब इतनी बड़ी अमाउंट को लिखने वक्त हमें यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि कितने किलोमीटर्स अबव है या कितने किलोमीटर्स अवे है। तो इसको सिंपल वे में जो डिस्टेंस है ये मून का है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। क्लियर, तो इसको सिंपल वे में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसकी 10 की पावर लिख के। हमेशा आपने देखना है कि अगर किसी का कोई पॉइंट नहीं होता, ये एक साइंटिफिक वे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे पॉइंट होता है, यहाँ से पॉइंट उठा के आपने फर्स्ट डेसिमल के बाद लेके आना है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो जो नॉन वैल्यूज़ होंगी उनको हम लिखेंगे और बाकी काउंट करके 10 की पावर में लिख देंगे, लाइक दिस 3.84 1 2 3 4 5 6 7 and 8 multiplied by 10 की power 8 meter. This is the scientific way. Okay, take another example. If there are not a zero addition, so like this 6 2 7 5 0. Here that is the another example, and we don't know how, where is the point lies. So if there is no point lies on the given numbers, so it is understood that the point will be lies at that extreme point, like this on left eye. So take a point from this to directly take back the फर्स्ट डेसिमल। हमेशा आपने यहाँ से पॉइंट उठाना है और उसको फर्स्ट डेसिमल के बाद ले आना है, और उन पॉइंट्स के दरमियान जितने भी नंबर्स आते हैं उनको हमने क्या करना है 10 की पावर में लिख देना है। ठीक है, तो ये सिंपल आ जाएगा 6.275 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4। दैट इज़ द साइंटिफिक नोटेशन। ओके, अगर तो ये तो था आपको सिंपल मैंने बता दिया। अब यहाँ पे दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो होता है पॉजिटिव में वैल्यूज़ चली जाती है नेगेटिव की और 10 की पावर की, और एक मरतबा नेगेटिव में भी जा सकती है। अगर तो आप क्या करते हैं, पॉइंट को यहाँ से राइट से आप लेफ़्ट लेके जाते हो, फिर 10 की पावर हमेशा किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। अगर आप क्या करोगे, लेफ़्ट से राइट पे लेके जाओगे पॉइंट, तो उसमें 10 की पावर हमेशा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। चलिए इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज किया हमारे पास एक अमाउंट है 0.45। क्लियर, दैट इज़ सम कॉमन वैल्यूज़। नो सिंपल साइंटिफिक नोटेशन, when we take a point from left to right, the tens power will be a negative, like this। पॉइंट यहाँ से हमने उठाया और फर्स्ट डेसिमल के बाद लिखे आना है, तो यहाँ पे आ गया। तो कितने 1 2 3 4, हमारे पास कितना हो गया 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 minus 4। दिस इज़ द साइंटिफिक नोटेशन। टेक another example. If we have a amount like this 0.1 2 3 4 5 4 8 सेकेंड्स, ठीक है, ये हमारे पास कुछ सेकेंड्स है। इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनेगी, हमारे पास यहाँ से पॉइंट हमने उठाना है, लेफ़्ट से राइट पे लेके जाना है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.48 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6।
10⁻⁻6 सेकेंड। ये हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। आई होप यू विल गेट थ्रू।